हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड के इंग्लिश चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट फ्लाइट में है। नेल्सन मंडेला चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वो फ्रीडम के लिए जो लड़ाई किए थे वो अफ्रीका के थे, तो उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देख लेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाएगा और पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में पैराग्राफ क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर सेकंड लेक्चर में इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कंपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। प्रत्येक उत्तर का प्रश्न का उत्तर कुछ शब्दों या वाक्यों में दीजिए। तो शब्दों और वाक्यों में दीजिए। Question first, where did the ceremony take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? समारोह कहाँ पर हुए थे? क्या आप भारत की किसी सार्वजनिक इमारत का नाम बता सकते हैं जो लाल पत्थर से बनी हो? तो आंसर, the ceremony took place in the sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Some public building in India made of sandstone are राजपथ भवन and Red Fort in Delhi. तो ये चीज़ें थी। Second question, can you say how 10 May in an autumn day in South Africa? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसा है? आंसर, 10th May is an autumn day in South Africa because it marks the beginning of a new and fresh human regime based on equality. In the other words, it is a day in which the old leaves of discrimination and oppression are replaced by the fresh leaves of liberty, democracy and equality. Question number third. At the beginning of his speech, Mandela mentioned and the extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speak of at the end? तो हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला ने एक असामान्य मानवीय त्रासदी का उल्लेख किया था। इससे उनका क्या तात्पर्य था? अंत में बोली गई अद्भुत मानवीय उपलब्धियों से क्या अर्थ है? तो आंसर इसका लिखते हैं, और आंसर क्या है? By maintaining an extraordinary human resources, Mandela is referring to the practical of apartheid followed in South Africa. This meant that these are racial segregation based on color, due to which the blacks suffered a lot. They were not allowed to demand freedom and did not have any right. The glorious human achievement that Mandela refers to in the end is that now South Africa has gained its freedom. A black person has become its president. No, with the first non-racial government, each and every woman is entitled the certain rights, freedom and equality which was earlier denied. Question number 4. What does Mandela thank the international leader for? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद करते हैं? आंसर, मंडेला thanked the international leader for their presence in the inaugural ceremony. Due to their presence, the event could be considered as a common victory of the South African people for justice, peace and human dignity. तो क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। What ideal does he set out for the future of South Africa? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने क्या आदर्श स्थापित किए? तो आंसर, Mandela set out certain ideas for the future of South Africa. He stated that all people will be free from poverty. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अब ये भी देखते हैं। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? सैन्य अधिकारियों ने क्या किया, उसका बर्ताव कैसे और क्यों बदल गया? आंसर, the military general salute Mandela to express their loyalty to democracy. Earlier, these generals had treated Mandela as a criminal and were always ready to arrest him
The attitude is changed due to the fact the Mandela was now the elected president of their country. तो इस तरह चेंज हुआ उसका बर्ताव अधिकारी का। सेकंड क्वेश्चन, वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? तो इसमें ब्लैक और गोरे का था आंसर। टू नेशनल एंथम, वन ऑफ द ब्लैक्स एंड द अदर ऑफ वाइट्स, वेयर संग टू एंड रेशियल prejudice. It was done to signify equality of both the races. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये बहुत ही बड़ा है तो मैं इसको नहीं दिखाता, बस आप लोग स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्क्रॉल डाउन करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? अरे यार ये भी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज करेज मीन्स टू द मंडेला, मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? फॉर आंसर, फॉर मंडेला करेज डिड नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर्स बट द विक्ट्री ओवर इट। अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन डिड नॉट नीड टू बी फियरलेस बट ही शुड बी एबल टू कॉन्क्यूज फियर। ये इसका हिंदी में अनुवाद है, क्योंकि ये बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है, आप लोग को भी ये लागू होनी चाहिए। तो आइए चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। विच डज ही थिंक इज नेचर, टू लव और टू हेट, उसके अनुसार का क्या प्राकृतिक है, प्रेम करना या नफरत करना? तो आंसर, ही थिंक लव इज नेचर वेयर hate in not nature. The feeling of love comes to our heart naturally. On the other hand, we have to learn how to hate, as this feeling does not develop by itself. इससे हम अपने आप को विकसित नहीं कर सकते हैं। तो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, तो ये भी क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं पर अच्छा चलिए ठीक है दिखाई देते हैं। व्हाट, क्या, ट्विन ऑब्लिगेशंस डू मंडेला मेंशन, मंडेला ने कौन सी दोहरी जिम्मेदारी का उल्लेख किया है? तो आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एवरी मैन हैज ट्विन्स ऑब्लिगेशन। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुक आफ्टर हिज फैमिली parents, wife and children. The second obligation is to serve his people, his community and his country. तो ये चीज़ था। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लेंदी है, क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, इतना मांग चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इन फ्री, वाई नॉट, क्या मंडेला मानते हैं कि दमनकर्ता स्वस्थ है, क्यों नहीं? तो आंसर, मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज फ्री, ही थिंक दैट द ऑपरेसर इज अ prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. He feels that both the oppressor and the oppressed alike are robbed of their humanity. तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। थिंक अबाउट द टेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, तब भी चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रियम्फ ऑफ, अंतर्राष्ट्रीय नेता इतने बड़े स्तर पर उद्घाटन समारोह में क्यों सम्मिलित हुए थे, ये किसकी जीत का प्रतीक था? आंसर, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द inauguration to pay their respect to the freedom of South Africa. It signified the triumph of the people over discrimination and oppression. It also signified the recognition of human equality. क्वेश्चन नंबर सेकेंड लोड हो रहा है यार, समय ले रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, मैं स्क्रॉल डाउन ठीक है धीरे धीरे कर दे रहा हूँ यार, ये परेशान कर देता है बार बार। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये भी स्क्रॉल डाउन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं पैराग्राफ क्वेश्चन है, तो सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, सेकेंड लेक्चर में पैराग्राफ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अब आते हैं शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पे, ये सब सेकंड लेक्चर में देखेंगे, सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं। सेकंड लेक्चर अगर आप लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी देख रहे हैं सेकंड लेक्चर देखिएगा ज़रूर। सेकंड लेक्चर कल या परसों में आ जाएगा। शॉर्ट
लॉन्ग पे आ गए, शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट, हाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, परीक्षा में प्रोपोज के पाठ्यों से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से किसी 2 के आंसर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो 9 क्वेश्चन होंगे, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रोमिस टू हिज नेशन। नेल्सन नेल्सन मंडेला ने अपने देश को क्या वचन दिया था। तो आंसर इसका है, नेल्सन मंडेला promised to make the nation free from poverty, deprivation, oppression, and discrimination of all kinds. He promised to devote himself to the well-being of nation and its people. तो ये था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबलाइज। जेट वायुमान का प्रदर्शन और सेना द्वारा सलाम किसका प्रतीक था। आंसर, द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबलाइज द क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ फ्री एंड फेयरलेस इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इसके लिए था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what intended effect was produced by decades of ऑपरेशन। दर्शकों के अत्याचारों के क्या अवांछित प्रभाव उत्पन्न हुए। आंसर, द डिकेड्स ऑफ torture and oppression certain as unintended effect on the blanks, the black people who fought against the unjust policies of apartheid were produced out of the oppression. These people had extraordinary courage, wisdom, and generosity. These people included many South African patriots such as Walter Sisler, Oliver Tambo, Bram Fischers, etc. ये सभी चीज़ें इतने ज़्यादा चीज़ें थी, सभी इंक्लूडेड थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डज मंडेला रेफर टू एज ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन डिजास्टर। असामान्य मानवीय त्रासदी से मंडेला का क्या तात्पर्य है। आंसर, बाय मेंटेनिंग एंड extraordinary human disaster, Mandela is referring to the practice of apartheid followed in South Africa. And this means that there was racial segregations based on color, due to which the blacks suffered a lot. These policies created a deep and lasting wound in South Africa and its people. They were not allowed to demand freedom and did not have any rights. तो ये चीज़ें थी, ब्लैक और वाइट में वहाँ मतभेद हुआ था। यार एक बार टिपा जाता तो ससुरा ये खुल जाता है यार। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू मंडेला's whose unimaginable sacrifices leaded the way of freedom to South Africa। मंडेला के अनुसार किनके अकल्पनीय बलिदानों ने दक्षिण अफ्रीका के आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया था। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला द डे ऑफ फ्रीडम हैड कम थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of people of South Africa whose sufferings and courage can never be counted or repaired। तो ये था पांचवें का आंसर। आइए छठवें में चलते हैं, छठवें का आंसर देखते हैं। छठवां क्या है, What was impossible for a black skinned man in South Africa। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत इंसान के लिए क्या असंभव था। अश्वेत मतलब काले। आंसर, इन साउथ अफ्रीका इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ ब्लैक मैन टू fulfill his duties toward his family, country and community. If they tried to fulfill his duties to his people, then they were ripped from his family and was forced to live a life apart।
क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द इनऑग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। साधारण शब्दों में शुभारंभ समारोह का वर्णन कीजिए। तो साधारण शब्दों में करना है तो आंसर है, इट वॉज द डे ऑफ 10th May 1994 द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ अ ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला was to be installed dignitaries from different countries participated in the ceremony. The deputy president and the president took the oath. All military generals salute the president and the president gave a memorable speech. तो ये था क्वेश्चन नंबर 8वां, जो फाइनल क्वेश्चन है आज का लेक्चर का। वाई वॉज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम। क्या मंडेला अपनी सीमित आज़ादी का आनंद क्यों नहीं ले सकते थे? आंसर, मंडेला वॉज नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम बिकॉज he knew that people of his country were not free. They were suffering by poverty and racial discrimination. तो ये चीज़ें थी क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इसके बाद पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर बचे हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर बचा है, तो ये सेकंड लेक्चर में आएगा। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।